انڈیا پاکستان کی 1965 جنگ کے غازی میجر جنرل ریٹائرڈ شفیق احمد نے اپنے جوانوں کے ساتھ کیسے چونڈا کے مقام پر دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا؟ ہمارے سے 6 گنا بڑا دشمن تھا، ہم نے کامیابی سے اپنا دفاع کیا اور دشمن کو آگے نہیں جانے دیا۔ دوران جنگ پاکستانی فوجیوں کو دیے جانے والے کھانے اور نور جہاں کے نغموں نے جوانوں کا کیسے حوصلہ بلند رکھا؟ میرے ڈھول سپاہیا تینو رب دی رکھ۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں عثمان بٹ۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات 1965 میں ہونے والی انڈیا پاکستان کی جنگ کے غازی میجر جنرل ریٹائر شفیق احمد صاحب سے کروانے جا رہے ہیں، جو کہ چونڈا کے مقام پہ اپوائنٹ تھے اور وہاں پر ٹینکوں کی دوسری بڑی جنگ ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کے مابین۔ تو ان سے جانتے ہیں وہاں کے حالات و مناظر کیا تھے جب 1965 کی جنگ ہوئی تھی اور پاکستان نے دشمن فوج کو ناکو چنے کیسے چبوایا تھا، ان سے جانتے ہیں۔ میں تو کوئی جنگ شروع ہونے سے کوئی 3-4 دن بعد وہاں پہنچا تھا، کیونکہ میں نے کوئٹہ سے آنا تھا، تو کوئٹہ سے آتے آتے کو 3 دن لگ گئے اور 3 دن کے بعد میں وہاں پہ پہنچا تھا۔ اور ان 3 دنوں میں دشمن نے بارڈر پہ، کیونکہ ہمارے خاص وہاں پہ ٹروپس نہیں تھے اور اس کی وجہ سے وہ 3 دنوں میں پیش قدمی کر کے اور چونڈا تک پہنچ گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر چونڈا خاص جو شہر ہے اس کے ارد گرد جنگ ہوئی، 5-7 دن اور لگی رہی اور ان کو اس میں ناکامی ہوئی اور اللہ نے ہماری بڑی مدد کی اور ہم نے وہاں پہ دفاع جو ہے وہ کامیابی سے اپنا دفاع کیا اور دشمن کو آگے نہیں جانے دیا۔ 6 سپتمبر کو انڈیا نے لاہور پہ حملہ کیا اور 7 سپتمبر کو سیالکوٹ کی بارڈر پہ حملہ کیا۔ تو فوجیں تھیں، ان کا ایک سیالکوٹ کی بارڈر پہ ان کے 4 ڈویژن تھے، ایک ڈویژن میں 15,000 آدمی ہوتے ہیں، تو ان کے تقریباً 60-70-80 ہزار لوگ جو ہے انہوں نے سیالکوٹ مختلف جگہوں پہ اپنی کارروائی شروع کی۔ اور جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ ان کا جو بختر بند ڈویژن تھا جس میں تقریباً 200 ٹینک ہوتے ہیں، تو انہوں نے رخ کیا بارڈر سے چونڈا کی طرف اور چونڈا سے وہ آگے نہر کے اوپر جانا چاہتے تھے یا گجرانوالہ جانا چاہتے تھے۔ تو چونڈا اور بارڈر کے درمیان یہ چند دن تک لڑائیاں ہوتی رہیں، ہمارے بھی ٹینک آ گئے، ان کے بھی ٹینک آ گئے، ہمارے بھی کوئی 200 ٹینک تھے، ان کے بھی 200 ٹینک تھے، تو یہ 400 ٹینک جو ہیں یہ آپس میں وہاں پہ چونڈا اور بارڈر کے درمیان یہ ان کی لڑائی ہوتی رہی اور ان کی کوشش تھی کہ وہ آگے پیش قدمی کریں اور ہماری کوشش تھی کہ ان کو پیش قدمی نہ کرنے دیا جائے اور ان کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں اتنا نقصان پہنچایا جائے۔ تو جب یہ لڑائی ابھی جاری تھی تو ہماری فوج نے یہ حکمت عملی کی کہ چونڈا جو شہر ہے، جو اس وقت گاؤں تھا اور ابھی ایک شہر بن گیا ہے، اس کا دفاع کرنے کے لیے ایک انفینٹری بریگیڈ، پیادہ بریگیڈ، اس کو یہ کام سونپا گیا کہ آپ نے یہاں سے آگے ان کے ٹینکوں کو نہیں جانے دینا۔ تو ہمارے ساتھ بھی ٹینک تھے، تھوڑے کم ہوتے ہیں انفینٹری بریگیڈ کے ساتھ، تو ہمارے پاس بھی ٹینک تھے۔ تو ہم نے 11 سپتمبر کو، یعنی کہ 4 دن کے بعد، ہم نے
चविंदा का दिफा इख्तियार कर लिया। उसमें हमारा एक ब्रिगेड था, ब्रिगेड में तकरीबन 6000 बंदे होते हैं। तो 6000 बंदों ने वहाँ पे दिफा इख्तियार कर लिया। उसमें मेरी भी एक कंपनी थी और मैं कंपनी कमांडर था। मेरे पास तकरीबन 100 आदमी था जिनका मैं कमांडर था। और मुझे भी एक जगह बता दी गई कि आपने यहाँ दिफा करना है। कुछ और लोग मेरे दाहिने में थे, मेरे बाएं में थे, और हमने चविंडा के इर्द गिर्द हमने दिफा इख्तियार किया हुआ था। तो इन्होंने, दुश्मन ने टैंकों के अलावा उन्होंने अपने एक प्यादा डिवीजन को ये काम सौंपा और उसका नंबर था 6 माउंटेन डिवीजन। और उनका एक जो कमांडर था वो था जनरल किरला। तो जनरल किरला को उन्होंने ये टास्क सौंपा कि ये जो ब्रिगेड जिसने चविंडा का दिफा लिया हुआ है, तुम इन पर कब्जा करो ताकि हम टैंकों को और आगे ले जाएं। 18 सितंबर की रात को उन्होंने ये तकरीबन उनका जो डिवीजन था और उसमें 15,000 आदमी होते हैं, तो उन्होंने उनका अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने हमला करने के लिए अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी। तो सारी रात 18 की रात को घुमसान की लड़ाई होती रही और उसमें मेरी जो पोजीशन थी उसके ऊपर भी लड़ाई होती रही और दूसरों के ऊपर भी कुछ लड़ाई होती रही, जो हमारे साथी थे उनके ऊपर ही लड़ाई होती रही। तो इन शॉर्ट उसका पूरी रात को जो वो, हालांकि उनकी नफरी जो है वो हमारे से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा थी और उनके टैंक जो है उनको अगले दिन अलग सुबह उन्होंने टैंकों ने आके और उनकी मदद करनी थी। तो लेकिन रात को उनके हमले जो होते रहे वो अल्लाह के फजल से और हमारे जवानों की और हमारे अफवाज की अच्छी हिकमत अमली की वजह से हमने उनके जितने हमले थे उनको पसपा किया और रात सारी गुजर गई। जब सुबह हुई तो उनकी 6 पलटनों ने यानी तकरीबन 6000 आदमियों ने उनका जो हमला हुआ था, जब के बाद दीगरे उन्हें हमले किए तो वो सारे नाकाम हो गए। और नाकामी के बाद जनरल किरला जो है वो अपनी अफवाज को वापस उसने बुला लिया और उसके बाद कोई ख़ास लड़ाई नहीं हुई और उसके बाद सीज़ फायर हो गई। सर, कहा जाता है कि दूसरी आलमी जंग अज़ीम के बाद ये सबसे बड़ी टैंकों की जंग थी। तो पाकिस्तानी फ़ौज का जज्बा कितना बुलंद था, मोराल क्या था और कैसे, मतलब चूँकि वहाँ पे देख रहे हैं आप अपने साथी भी शहीद हो रहे हैं, आग भी लगी हुई है, मतलब हालात काबू से बाहर हैं, तो वो कैसे उनका जज्बा और किस तरह बहाल हो रहा था? जिसको हम मोराल कहते हैं या जिसको स्पिरिट कहते हैं, तो वो लड़ाई में कामयाबी या नाकामी होने का एक बहुत बड़ा सबब होता है। और मोराल अच्छा था तो हमने अल्लाह के फजल से, अल्लाह ने हमारी मदद की और मोराल अच्छा था तो हम कामयाब हुए। मोराल ख़राब होता तो हम कैसे कामयाब हो सकते थे? हमारी लड़ाई थी कि हमने कश्मीर फतह करना है और हमारी बुनियादी तौर पे ये वजह थी। और कश्मीर फतह करने के लिए ये हमारी शहर आ गए और कश्मीरी जो है वो हमारे मुसलमान भाई हैं और उनके ऊपर हिंदुस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है और उनकी मर्ज़ी के बगैर उनके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और उस वक्त भी कब्ज़ा किया हुआ था। और हमारी जो वजह है जिसकी वजह से हम जंग कर रहे थे, तो हमारे हर एक के दिल में ये था कि भाई हम हक पे जाने में। सर, ये बताइएगा कि वहाँ पर जिस टाइम जंग बंदी हो जाती थी, मतलब रात के वक्त या किसी भी टाइम रुक जाती थी, तो आप लोग क्या करते थे उस टाइम? आपस में कोई हिकमत अमली या FM रेडियो को सुनते थे कम्युनिकेशन के ज़राए? और खाने पीने में क्या होता था वहाँ पे?
और खाने पीने के हमारे बाकायदा बंदोबस्त होता है। हमारे अपने हर एक बंदे के पास एक इमरजेंसी राशन होता है। अगर खाना नहीं आ सकता तो वो इमरजेंसी राशन हर वक्त 3 दिनों का इमरजेंसी राशन होता है, तो वो हम अपना राशन निकालते हैं। उसमें कोई इस तरह के गुड़ और चने और बिस्किट और इस किस्म की चीज़ें होती हैं जो कि हम खा लेते हैं और खाने का बंदोबस्त हो जाता है। पानी की बोतलें होती हैं, तो पानी की बोतल में पानी होता है, हमें पता होता है कि इसमें कितना पानी है। कुछ बचा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं। बाकायदा बकरे ज़बह होते हैं, बाकायदा बड़ा गोश्त होता है, बाकायदा चपातियाँ होती हैं, बाकायदा हर एक चीज़ होती है। और कभी ज़्यादा कभी कम, कभी फ्रूट नहीं होता है, कभी होता है, कभी रोटी नहीं होती है, कभी होती है, कभी टाइम नहीं होता है खाने का। तो ये चीज़ें जो है चलती रहती हैं और ये नॉर्मल होती हैं, इनमें कोई नई बात नहीं है। यही हिंदुस्तान की वाले की भी ये होती है और ब्रिटिश वालों की भी ये होती है, हर कहीं वाले। सर, जब ये जंग बंदी हो गई थी, सीज़ फायर जिसको आप बोल रहे हैं, तो आपका इस्तकबाल कैसा किया गया? ख़ानदान में, फैमिली में दावतें शुरू हो गई क्या? और पाक फ़ौज में कैसा इस्तकबाल किया गया? वापस आने वाले जो जवान थे, गाजी थे, उनको कैसा प्रोटोकॉल दिया गया? इस्तकबाल जहाँ भी हम जाते हैं, मिसाल तौर पे हमारी जब जंगबंदी हुई तो अपने हमारे ट्रुप्स जो थे वो तो वहीं लगे हुए थे, तो उन्होंने समझा, हमारे हायर कमांडर वालों ने समझा कि हम एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तो हम इकट्ठे हो गए थे। जिन लोगों को तकमे मिलने थे उनको तकमे देने के लिए हमारे बड़े सीनियर अफसर वो आ गए। हम सियालकोट से इधर लाहौर में शालीमार गार्डन में आ गए और मुझे भी सितारे जुर्रत मिलना था, तो वहाँ यहाँ हम आ गए। हमें हुक्म मिला कि अच्छा जीप में बैठो और आपने जाना है लाहौर में, और वहाँ जाके आपको कमांडर इन चीफ हमारे जनरल मूसा थे, उन्होंने आके और आपको तकमा देना है। तो यहाँ पर हम शालीमार बॉर्डर में आए, तो हमारे जनरल मूसा जो है वो एक एक करके हमारे सामने आए और हमारा उन्होंने तकमा लगाया। सर, ये बताएं कि आपने अफवाज पाकिस्तान को कब ज्वाइन किया था और कितने अरसे बाद ये जंग शुरू हो गई थी, और क्या आपको था कि मैं ज्वाइन करूँगा तो ऐसे हालात भी हो सकते हैं? उस टाइम लग रहा था जब आपने ज्वाइन किया? हाँ, मैंने पाकिस्तान आर्मी को 1952 में ज्वाइन किया था और ये लड़ाई हुई थी 13 साल बाद। तो हमारी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल की ट्रेनिंग, या जब हम कहीं स्कूलों में कोर्स करने जाते हैं, कोई कोयटा में जा रहे हैं, कहीं पे नौशहरा में जा रहे हैं, कहीं पे पेशावर जा रहे हैं, कहीं पे आज़ाद कश्मीर में जा रहे हैं, कहीं पे कहीं और जा रहे हैं, तो हमारी सारी ट्रेनिंग इसी के लिए होती है। हमारा काम ही यही होता है कि आप गर्मियों में आपको लड़ाई लड़ेगी तो फिर आप जाएं और जाके बाहर कैंप करें। तो गर्मियों में टेंटों में सख्त गर्मी होती है, तो हम जाके रहने के लिए टेंट होते हैं या मोर्चे होते हैं, तो हमें बताया जाता है कि भाई अगर गर्मियों में लड़ाई होगी तो आपको मोर्चे में बैठना पड़ेगा, और वहाँ एयर कंडीशनर तो नहीं लगा होगा और वहाँ पे आपके पखे भी नहीं होंगे, आपने इसी हालत में जंग लड़नी है। तो उसकी भी ट्रेनिंग होती है। जब सर्दियाँ होती हैं उसकी भी ट्रेनिंग होती है। जब पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पहाड़ों पे भी यही ट्रेनिंग होती है कि आप पहाड़ी इलाके में जंग होगी तो किस तरह आप टैंकों के साथ आप कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं, आपको हर चीज़ की, आपको फिज़िकल फिटनेस की, सुबह सवेरे हम उठ के और पीटी करते हैं, शाम को गेम्स करते हैं, हथियारों की ट्रेनिंग होती है, और नया हथियार आ जाता है उसकी ट्रेनिंग होती है। तो हमारी जो ज़िंदगी होती है वो हम प्रोफेशनल होते हैं, और हमारी ज़िंदगी जो है बीच में छुट्टियाँ भी मिल जाती हैं, बीच में शाम को होता है तो घरों में जो मैरिड होते हैं वो अपने घरों में भी रहते हैं, बच्चों के साथ भी रहते हैं, लेकिन ये नहीं होता है कि हम भूल गए। हमारा तो काम ही यही होता है। इस दुआ के साथ पाकिस्तान सदा सलामत रहे, ता क़यामत रहे। अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।